हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में सेक्स लिंकेज और उसका मेथड ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे, जिसमें कि दो मेथड क्रिस क्रॉस मेथड एंड नॉन क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। जनरली यू नो सेक्स लिंकेज मीन्स inheritance of characters with the help of sex chromosome or genes present on sex chromosome is called sex linked gene. Inheritance of sex linked gene together without separation generation to generation is called sex linkage. It means on the basis of sex chromosome, sex linkage is of three types. On the basis of sex chromosome, you know in human two types of sex chromosome, X chromosome and Y chromosomes are present. So sex linkage is of three types also. X linkage by X chromosome, Y linkage with the help of Y chromosome, and XY linkage means with the help of X and Y both sex chromosome. So on the basis of sex chromosome, sex linkage is of three types: X linkage, Y linkage and XY linkage. X linkage means linkage of those genes which are present on non-homologous region of X chromosome. Non-homologous region of X chromosome. Suppose that this is X chromosome and this is Y chromosome or X chromosome in case of female. अगर दोनों है this gene, अगर यहाँ जीन है और इसी के सेम पोजीशन में ए जीन है, इसी के सेम पोजीशन में ये जीन है, डेट इज कॉल्ड होमोलोगस रीजन। इसका नाम क्या देंगे? होमोलोगस रीजन। ओके, एंड इफ वन जीन प्रेजेंट दिस लाइक देयर, अदर जीन देयर, और यहां कुछ जीन यहां है, दीज आर कॉल्ड नॉन होमोलोगस रीजन। इसका नाम क्या देंगे? non-homologous region. Okay, so X linkage means linkage of those genes which are present on non-homologous region of X chromosome only, not on Y chromosome, because it is X linkage. X linkage है, इसीलिए इसका जीन सिर्फ X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर होगा। ओके, एक्स लिंकेज में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर भी होता है और कुछ रिसेसिव कैरेक्टर भी होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर appears in homozygous and heterozygous both condition, while recessive only appears in homozygous condition. ओके, डोमिनेंट हेट्रो और होमो दोनों कंडीशन में और रिसेसिव ओनली होमोजाइगस कंडीशन में। एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंकेज रिसेसिव कैरेक्टर्स सच एज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स एन एबिलिटी टू डिटरमाइन द सम बेसिक कलर। इनएबिलिटी टू डिटरमाइन द सम बेसिक कलर इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, हेमोफीलिया, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म देखिए तो ना होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज एन एंजाइम। यह एक एंजाइम है और यह एंजाइम कुछ वैसे प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, proper functioning of RBC means glucose 6 phosphate dehydrogenase
responsible for maturation and functioning of RBC. In absence of these hormone, these enzyme, premature breaking of RBC takes place. अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का डिफिशियंसी होता है तो आरबीसी का प्री मैचुरेशन ब्रेकिंग होगा. नेक्स्ट एग्जांपल, डीएमडी ऑल्सो कॉल्ड डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. डीएमडी डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी and DMD means progressive degeneration of muscles, और degeneration और weakness कह सकते हैं progressive weakness of muscles is called Duchenne muscular dystrophy. Next, diabetes insipidus, also genetical disorders, and Fragile X syndrome. Fragile X syndrome is responsible for the proper functioning of brain. Proper functioning of brain. ठीक है ना? So these are the different types of recessive X linkage disorders. Recessive, that only appears in homozygous condition. In heterozygous condition, these symptoms, these disorders not appears. And these are dominant X linkage, pseudo rickets, Ashley rickets, character Ashley rickets, and defective enamel of teeth. Defective enamel of teeth. Enamel is the outermost hard covering of the teeth. So these two are dominant X linkage disorders, and dominant disorders occurs in both condition, homozygous and heterozygous. ओके, अब हम जरा इस कैरेक्टर के कुछ जो जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया का कुछ डिटेल्स में देखते हैं. ओके, देखें. कलर ब्लाइंडनेस, it is X linked recessive disorders and also transmit through X chromosome. Okay, discovered by Horner, and it is inability to differentiate fundamental colors. फंडामेंटल कलर्स को पहचानने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती है. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कलर्स इट इज ऑफ 3 टाइप्स: प्रोटैनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटैनोपिया. प्रोटैनोपिया मीन्स रेड कलर ब्लाइंडनेस, रेड को पहचानने की कैपेसिटी नहीं होगी. ड्यूटेरोनोपिया, ग्रीन को कलर की पहचानने की नहीं होगा कैपेसिटी. एंड ट्राइटैनोपिया में ब्लू कलर को डिफरेंशिएट पहचानने की कैपेसिटी नहीं होती है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, एंड कलर ब्लाइंडनेस इज डिटेक्टेड with the help of a special cards or chart. That card or chart is called Ishihara card. Color blindness is detected by Ishihara card, and for detection this card is placed at 40-inch distance for 15 seconds. Okay, now different genotypes in condition of color blindness. Suppose that in female XX, one X chromosome having gene of color blindness, no effect, means no color blindness. वैसे फीमेल में
कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिसेसिव डिजॉर्डर्स एंड रिसेसिव डिजॉर्डर्स ओनली अपीयर्स इन होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन ऐसी जो फीमेल होगी वह कैरियर कहलाती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर करेगी, खुद इफेक्टेड नहीं होगी लेकिन ट्रांसफर करेगी। अगर हम दूसरा लेते हैं XC दोनों है, तब वह हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ओनली XX बिल्कुल नॉर्मल, दिस कंडीशन नो कलर ब्लाइंडनेस, इसको भी हम नॉर्मल कहेंगे, कैरेक्टर अपीयर नहीं होगी लेकिन वह कैरियर होगी। ऐसे फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, जिसको कि हम कैरियर नॉर्मल कह सकते हैं। अब देखिए अगर मेल के केस में देखें, इन केस ऑफ मेल X by 1X is affected, 1X having gene of color blindness, रिजल्ट क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मेल, and this is normal male. Okay, so these are the different genotype for disorders color blindness. अब देखिए इस पर एक क्रोमोसोम है X, और अगर वह X क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो डीजी अपीयर हो जाता है। फीमेल के केस में एक पर होने से डीजे अपीयर नहीं होता है। इसका मतलब है कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल में यह डीजे ज्यादा अपीयर होगा, ज्यादा प्रोन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट X linked disease is hemophilia, also called bleeder's disease, because in hemophilia delay in blood clotting occurs, and due to delay in blood clotting continue bleeding occurs, also called bleeder's disease, and it is also X linked recessive disorders discovered by John Otto, and clotting is delayed due to absence of some clotting factor. For blood clotting process, different types of clotting factor, 12 or 13 types of clotting factors are responsible for blood clotting, and due to absence of some blood clotting factor, hemophilia disease takes place. नॉर्मल टाइम फॉर क्लॉटिंग 2 to 7 मिनट। नॉर्मल पेशेंट अगर नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो उसका क्लॉटिंग टाइम 2 to 7 मिनट्स, बट इन केस ऑफ हीमोफीलिया इट डिलेड अप टू हाफ एन आवर टू 24 आवर, 24 आवर तक भी डिले हो सकता है हीमोफीलिया कंडीशन में। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, हीमोफीलिया इज ऑफ 3 टाइप्स: hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. In these 3 types of hemophilia, hemophilia A and hemophilia B are X-linked disorders, while hemophilia C is autosomal disorders, because the gene for hemophilia C is present on autosomal chromosomes. Okay, so on the basis of clotting factor, it is of 3 types: हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। इन केस ऑफ हेमोफीलिया मोस्ट कॉमन एंड कॉल्ड रॉयल डिजीज, बहुत कम ही होता है, नहीं के बराबर होता है, इट इज कॉल्ड रॉयल डिजीज। एंड इन अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 इन हेमोफीलिया ए अकर्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज AHG. AHG means anti-hemophilic globulin. Anti-hemophilic globulin, that is clotting factor number 8. Next, hemophilia B, also called Christmas disease, and it is less common
Then hemophilia A. And hemophilia A, absence of clotting factor 9 occurs due to absence of clotting factor 9 PTH, prothromboplastin. PTH prothromboplastin. And third is hemophilia C, very rare, also called autosomal recessive disorders, because the gene of hemophilia C present on autosomal chromosomes and occurs due to absence of factor number 11, and that is PTH antecedent prothromboplastin antecedent. Okay, and the genotype of hemophilia is as like color blindness. अगर हम देखें फीमेल के केस में XHXH hemophilic, XHX normal and carrier. In case of male, XH by hemophilic. And this condition is very dangerous. लिखा हुआ है कहीं, देखिए, सो लिथलिटी. अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो ऐसे फीमेल सर्वाइव नहीं करती है, डाई इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. वह एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वैसा फीटस डाई कर जाएगा. ठीक है, तो ये हुआ मेन एक्स लिंक्ड डिजॉर्डर्स और डिजीज. चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, इफ ए वोमेन हैव 2 alleles of color blindness and 1 allele of hemophilia, okay, then what would be the percentage of color blindness and hemophilia in their sons and daughter? एक वोमेन के 2 एक्स क्रोमोसोम में से दो कलर ब्लाइंडनेस का एलील है और एक हीमोफीलिया का है. ध्यान दें, फीमेल का कंडीशन है XX, हैविंग 2 एलील्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है. एंड हैविंग 1 एलील ऑफ हीमोफीलिया मीन्स हीमोफीलिया प्रेजेंट ऑन ओनली 1 क्रोमोसोम. एंड मेल, नो डिस्क्रिप्शन, इट मीन्स मेल इज नॉर्मल. नहीं कुछ दिया हुआ है, मीन्स मेल क्या है, तो नॉर्मल है, तो एक्स और वाई. इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, XC, XCH, X and Y. Now cross. Sorry. XCX, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, XCHX, XCY, XCHY. These 2 are daughter, means female. These 2 are boys, male. गर्ल्स. ठीक है, अब देखिए, इट इज नॉर्मल कैरियर बट नॉर्मल. इट इज ऑल्सो कैरियर और नॉर्मल. दिस मेल कलर ब्लाइंडनेस, and this color blindness and hemophilic both. ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस एंड दिस कलर ब्लाइंडनेस एंड hemophilic both. इट मीन्स देखें, सन के कंडीशन में
या पहले लिखते हैं डॉटर। डॉटर की कंडीशन में क्या होगा, ऑल आर नॉर्मल, ऑल आर नॉर्मल, डिजीज अपीयर नहीं होगा मीन्स नॉर्मल है, ठीक है ना। सन, दो में से एक, कलर ब्लाइंडनेस मीन्स 50% कलर ब्लाइंडनेस, 50% कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी 50 नहीं, ये भी कलर ब्लाइंडनेस, ये भी कलर ब्लाइंडनेस मीन्स 100% कलर ब्लाइंडनेस एंड 50% हीमोफिलिक, 50% इज हीमोफिलिक, ओके। तो हमने देखा एक्स लिंक्ड डिजीज। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज का दूसरा टाइप, दैट इज बाई लिंकेज। हालांकि इससे बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन क्रॉस का, आप देखेंगे घर में बनाएंगे। तो हम देखते हैं बाई लिंक्ड। नाउ सी बाई लिंकेज। बाई लिंकेज मीन्स inheritance of those genes that are present on bi chromosome, okay. So linkage of those genes which are present on non-homologous region of bi chromosome, that is called bi linkage. Example of gene means bi linked gene. Example of bi linked gene, TDF gene and SRY gene. TDF gene, TDF gene means testis determining factor gene, and TDF gene is the smallest gene in male human. Male human का सबसे छोटा जीन present on bi chromosome and number of base pair in TDF gene is 14 बेस पेयर, सबसे छोटा है, मात्र 14 बेस पेयर का बना हुआ जीन है, ठीक है। जीन मीन्स पार्ट ऑफ सिगमेंट्स, सॉरी पार्ट ऑफ डीएनए, सिगमेंट ऑफ डीएनए, ओके। एंड टेस्टी डिटरमाइनिंग फैक्टर, इट सप्रेस द मुलेरियन डक्ट and promotes the Wolffian duct. Testis determining factor suppress the Mullerian duct and promotes the Wolffian duct. एक के डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल गोनैड्स। तो फीमेल गोनैड्स के जो रिस्पॉन्सिबल है मुलेरियन डक्ट, उसको सप्रेस कर रहा है, और वुल्फियन डक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल गोनैड्स, इसको यह प्रमोट्स कर रहा है। सो TDF suppress the Mullerian duct and promotes the Wolffian duct and responsible for maleness, responsible for maleness character, okay. Second is SRY, sex determining region present on bi chromosome. XRY का मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग जीन और रीजन, डिटरमाइनिंग रीजन ऑन बाई क्रोमोसोम. It is also responsible for determination of sex. Also responsible for determination of, ठीक है. SRY responsible for the sex determination in male. And the example of bi-linked disease or disorders, hypertrichosis. Hypertrichosis means excess hair on pinna. Excess hair on pinna. It is called hypertrichosis. Keratoderma. Thickness
या थिकनेस इन स्किन, स्किन क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, थिकनेस ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट डिजीज पोर्कुपाइन स्किन मीन्स स्केली स्किन, and webbed tooth. These are the example of bi-linked disorders or disease जिसका की ट्रांसमिशन बाई क्रोमोजोम के द्वारा होता है और उसका जीन बाई क्रोमोजोम पर सिचुएट होता है। नेक्स्ट हमको देखना है अब एक्स वाई लिंकेज। देखिए एक्स वाई लिंकेज, एक्स वाई लिंकेज इट मीन्स जीन प्रेजेंट ऑन बोथ क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। अभी तक हमने देखा कुछ का जीन केवल एक्स क्रोमोजोम पर, कुछ का जीन केवल वाई क्रोमोजोम पर, ठीक है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक्स वाई लिंकेज मीन्स जीन प्रेजेंट ऑन बोथ क्रोमोजोम एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, एग्जाम्पल याद रखना है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में होता क्या है कि पूरा बॉडी व्हाइट कलर का हो जाता है। ऐसे जो साधारण बोलचाल में कहता है कुष्ठ रोग, सफेद दाग, तो सफेद दाग में कहीं कहीं स्पॉट मिलता है, कुछ पार्ट बॉडी का वैसा होता है। लेकिन अगर यह डिजीज होगा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, पूरा बॉडी, पूरे स्किन का कलर एक जैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का। ओके, एंड नेक्स्ट एपिडर्मोलाइसिस ब्यूलोसा। एपिडर्मोलाइसिस ब्यूलोसा कैरेक्टराइज बाई फ्रेजाइल स्किन, सॉफ्ट स्किन और स्किन में कहीं कहीं इरिप्शंस, ब्लिस्टर्स शुरू हो जाता है, तो कहते हैं इजी ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्स वाई लिंकेज। ओके, अब छोटा छोटा दो टॉपिक रह गया है सेक्स कैरेक्टर से रिलेटेड, जिसको कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। इसको देख लेते हैं। देखिए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, the gene of sex limited character present in both sex, male or female both, okay, but the expression of character occurs in any one sex, male or female। जीन दोनों में है लेकिन उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, अपीयरेंस दो में से किसी एक का होगा। ठीक है, लिखते हैं जीन प्रेजेंट इन बोथ सेक्स बट appearance of character occurs in any one sex. It means वन सेक्स की बात करें तो एक सेक्स में अपीयर होगा एंड अदर सेक्स और अपोजिट सेक्स में अब्सेंट होगा। जीन दोनों में है फिर भी एक में कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। इट मीन्स अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर is regulated by सेक्स हार्मोन। जीन के फंक्शन के साथ साथ सेक्स हार्मोन भी उस कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स और इन फीमेल्स। मेल और फीमेल दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होगा। एज फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, मॉस्टैक, चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, एंड एंटेलर्स इन डियर। अदर एग्जाम्पल इज एंटेलर्स इन डियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल brilliant color of antler
in deer means branch in horn of deer. हॉर्न के ब्रांचिंग एंटलर्स कहते हैं, तो अलग अलग हॉर्न में, अलग अलग डियर के हॉर्न में ब्रांच का नंबर अलग अलग होगा. एंड नेक्स्ट, ब्रिलियंट कलर इन प्लम्बेज ऑफ पीकॉक. पीकॉक के विंग्स का जो अलग स्पेसिफिक चमकीला कलर है वह वैरी करता है ड्यू टू जीन एंड रोल ऑफ हार्मोन्स. बोथ जीन और हार्मोन दोनों का रोल होता है. तो ये हो गया सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर एंड अदर इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर. नेक्स्ट, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर. The gene of sex influenced character present in both sex, male and female, also appears in both. जीन ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर दोनों का जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होता है. याद रखना है, दोनों का जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होता है. सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, gene present on both sex, appears also in both sex, male and female, but appears differently. Character present in both male and female but express more frequently in anyone. दोनों में appear होगा लेकिन किसी में ज्यादा और किसी में कम. इसी को और कह सकते हैं इन्फ्लुएंस डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल. एग्जाम्पल, पैटर्न बाल्डनेस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं गंजापन. पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है ना. अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया बाल्डनेस का जीन है बी, ठीक है, दोनों डोमिनेट कंडीशन में होगा तो फीमेल में भी बाल्डनेस का केस आएगा, मेल में भी बाल्डनेस का केस आएगा. अगर दोनों रिसेसिव फॉर्म में है तो दोनों नॉर्मल होगा, मेल भी फीमेल भी. लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन सेक्स इज मोर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अदर. एक जो होगा दूसरा से ज्यादा हो. तो फीमेल के केस में नॉर्मल हो जाएगा और मेल के केस में बाल्डनेस हो जाएगा. इट मीन्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन जनरली मेल इज बाल्डनेस एंड फीमेल इज लेस बाल्डनेस और नॉर्मल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्स डिटरमिनेशन. ओके, थैंक्स.